السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم ایک تلوجہ میں ہیں، ممبئی گوا ہائی وے جو ہے اس پہ، اور یہاں سے تلوجہ فیس 1 میں جا رہے ہیں، اور ہمارے دوست مظہر ملا جی صاحب ہیں، ان کے بیٹے کے لیے ڈنر پارٹی ہے، تو چلیے ابھی آپ کو میں دکھاتے ہوئے لے کے چلتا ہوں فیس 1 میں، اور میرے ساتھ بنے رہیے، بہت انٹرسٹنگ ولاگ رہنے والا ہے۔ اوکے عزیز دوستو، آج کے اس ولاگ میں آپ کو کوکن کی علمی، ادبی اور سماجی شخصیات سے ملنے اور سننے کا موقع ملے گا۔ ویڈیو مشکل سے 55 منٹ کے اندر کا ہے، لیکن پورا دیکھیے۔ تلوجہ کے فیس 1 کے سکسیس انٹرنیشنل اسکول میں یہ پروگرام رکھا گیا تھا، اور ہمارے خاص دوست مظہر ملا جی صاحب، جو داویل گاؤں تعلقہ داپولی ڈسٹرکٹ رتناگری کے رہنے والے ہیں، لیکن وہ تلوجہ میں رہتے ہیں۔ ان کا بیٹا دانیال ملا جی، جو آئرلینڈ سے تعلیم حاصل کر کے پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کر کے 3 ہفتے کی چھٹی کے لیے انڈیا میں آیا تھا، تو اس کے اعزاز میں یہ پروگرام رکھا گیا تھا کہ عشائیہ یا ڈنر کا انتظام کیا گیا تھا، جس میں بہت ساری کام کی باتیں اور سیکھنے اور سمجھنے کی ملے گی۔ تو آپ اسکپ نہ کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یہ تلوجہ کے جو نتھاری ریلوے اسٹیشن یا میٹرو اسٹیشن جو ہے، اس کے پاس یہ پروگرام تھا، تو پلیز پورا دیکھیے۔ ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ میں نے گوپرو سے شوٹ کیا ہے، لیکن کافی پروگرام یہ اپنا لمبا ہوا، تھوڑا بڑا ہوا، بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، دوسری بیٹری چینج کرنے تک تو وہ پروگرام اسکپ کرنا پڑتا، میں مس نہیں کرنا تھا کوئی چیز، اس لیے میں نے فوراً موبائل سے نیکسٹ پارٹ شوٹ کیا۔ تو آخر کے چند منٹ آپ کو ویڈیو اور وائس کوالٹی میں تھوڑا سا فرق محسوس ہوگا، تو پلیز اس کو برداشت کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور ضرور شیئر کریں۔ ہائٹس بلڈنگ، یہ ہے ارمان ہائٹس بلڈنگ، پلاٹ نمبر 10 سیکٹر 12، پلاٹ نمبر 10 سیکٹر 12، نیئر پیٹھالی میٹرو اسٹیشن، تلوجہ فیس 1 میں، اور یہاں پہ سکسیس انٹرنیشنل اسکول ہے۔ دانیال کی انٹرویو ایک میں نے سیپریٹ لی ہے، اور اس کا ایک سیپریٹ ولاگ آئے گا، تاکہ یہ ولاگ بڑا نہ ہو، اس لیے وہ اس کے بعد وہ ولاگ آنے والا ہے، اس کو بھی یاد سے ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خواتین و حضرات، یہاں ہم ایک غیر رسمی پروگرام کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کا، نشست کا انتظام بھی کچھ غیر رسمی سا ہے۔ تو میں اپنے بارے میں کہوں تو مشہور شعر کی بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اور اسی کا اگلا شعر مظہر بھائی کے لیے رہے گا، کیونکہ بچہ کل جانے والا ہے، کہ لے گیا چھین کے کون آج میرے دل کا قرار، بے قراری تجھے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے ہر پروگرام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے، تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے آواز دے رہا ہوں متین ساٹھے صاحب کو۔ تو متین ساٹھے صاحب، مولانا متین ساٹھے صاحب یہیں سے تلاوت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صدق اللہ العظیم۔ تو الحمدللہ تلاوت کلام پاک سے اس
محفل کا آغاز ہو چکا ہے، بابرکت آغاز ہو چکا ہے. یہاں ہم جمع ہیں تو بہت سارے مہمان آئے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے، اور پروگرام کے کچھ مقاصد ہیں. تو یہ استقبال کے لیے میں اور یہ پروگرام کے مقاصد کے لیے میں آواز دے رہا ہوں عارف مہمتلو کو. ہم ایک انگلش اسکول سکسیس اسکول میں ہیں، لیکن ایک اردو کی تعریف کے شعر کے ساتھ میں، کیوں کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. السلام علیکم. آج میں مصدر ملا جی صاحب کی طرف سے اور ہمارے مجاہد میر کے بھانجے شعیب کی طرف سے یہاں موجود ہر ایک کا استقبال کرتا ہوں اس لفظی استقبال کے ساتھ کہ آج ہم لوگ ایک ایسی محفل کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس محفل کی ضرورت ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سماج میں ایک بہت الگ طرح کا ٹرینڈ اور ایک الگ طرح کا چینج آ رہا ہے. ہمارے بہت سارے پروگرام اپنی نوعیت سے بدلتے جا رہے ہیں. خصوصاً جب ہم شادیوں کی بات کریں تو وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. اب تو منگنیاں ایسی ہونے لگی ہیں کہ وہ منی شادیاں ہیں یا منگنیاں مین شادیاں ہیں اور شادیاں پھر کچھ الگ ہوتی جا رہی ہیں. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں مصدر ملا جی کو کہ آپ نے مصدر بھائی ایک ایسی محفل جمع کرنے کی کوشش کی ہے جو اس مزاج کی ضرورت ہمارے سماج میں آنا اور ہماری قوم میں آنا بہت ضروری ہے. آج مصدر بھائی کے فرزند ان کے بیٹے اس کوکن کی سرزمین سے آگے بڑھنے والی وہ نوجوان نسل ہے جو ہمارے بچوں کو ایک ٹرینڈ دے رہی ہے. بے شمار بچے کوکن سے بہت دور تک پہنچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ نہیں کیا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا شروع کریں گے تو ہمارا یہ کنٹریبیوشن، ہمارا یہ ریشو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بڑھ جائے گا. تو میں یہاں موجود تمام حاضرین کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک نئے ٹرینڈ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں سماج میں، ایک چیلنج کے ساتھ کہ جہاں منگنیاں بہت بڑے بجٹ پہ بنتی ہیں وہاں تعلیمی پروگرام بھی بہت اچھے بجٹ پہ بن سکتے ہیں. ہمارے شعیب بھائی جن کی اسکول کو آپ نے وزٹ کیا، ہمارے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے فجندار صاحب موجود ہیں. ان کے ادارے کو دیکھنے کے بعد وہاں سے نکلنے والی قوموں کو، نسلوں کو ہم نے دیکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ حاضری اس چھوٹی سی اسکول کو ان دعاؤں کی سوغات دے گی کہ کل فجندار اسکول اور انجمن کی جو ہے بڑی بڑی شاخوں میں شعیب کی اسکول بھی شامل ہوگی. تو میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور ہمارے بھتیجے کے لیے کہ بیا ایک چھوٹی سی چڑیا، بیا ایک چھوٹی سی چڑیا تڑپ کے ہاتھوں ہی گھونسلہ بناتی ہے. پیاس علم کی تعمیر کی، ترقی کی، پیاس کوئی ہو راستہ دکھاتی ہے، راستہ دکھاتی ہے. آئرلینڈ تک کا جو راستہ ہمارے دانیال کو جو ہے اس تڑپ نے، اس پیاس نے دکھایا ہے. ان دعاؤں کے ساتھ کہ ایک کامیاب انسان کی صورت میں آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کو نوازتے ہوئے یہاں پہنچائے. اور میں استقبال کرتے ہوئے یہاں موجود جتنے ہمارے ساتھی، ان لوگوں کو کوئی موضوع مصدر بھائی نے نہیں دیا ہے. مصدر بھائی کی محبت، ان کا اٹیچمنٹ آپ کو یہاں کھینچ لایا ہے. یہاں آپ کو اپنا موضوع چننا ہے اور بہت مختصر میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کرنا ہے. بہت جزاک اللہ، شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ غیر رسمی پروگرام ہی صحیح،
لیکن اس پروگرام کے لیے ایک امیر بناتے ہیں ہم، صدر مجلس، اور جناب شکیل رشید صاحب ہمارے سامنے ہیں. میں اس شعر کے ساتھ میں کہ شفق دھنک مہتاب گھٹائیں تارے نغمے بجلی پھول، اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، وہ دامن ہاتھ میں آئے تو سر کا نام، شکیل صاحب کا نام صدارت کے لیے میں تجویز کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب یہ اس شعر سے میں آواز دے رہا ہوں جس شخصیت کو کہ اس سے پہلے عارف صاحب نے آپ سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، میں دوبارہ دہرا دوں کہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں اور بہت سے لوگ بولنے والے ہیں، تو معذرت کے ساتھ میں اگر مختصر کہیں بات پر اثر بھی ہوگی اور میٹرو بھی مل جائے گی. اس کے علاوہ تمام لوگوں کی بات سن بھی پائیں گے. اور مختصر بات میں یہ کہ جوامع الکلام اب جب ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو مختصر ترین کلام اور پر اثر ترین. تو میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، پس آئینہ میراج سے سر آئینہ کوئی اور ہے. سلیم الواری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ خواتین آج بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، ورنہ ہم ہمارے پروگراموں میں جاتے ہیں تو ہم خواتین کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں کہاں پر ہیں. آواز نہیں پہنچے گی تو بولو، میں پوری کوشش کروں گا. تو میں تمام لوگوں کو جو ہے شریک ہیں، تمام ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، میں تمام لوگوں کو آج کی اس شرکت پر، اور آپ لوگ جن کے ساتھ آئے ہیں، ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کی محفل کے صدر ہمارے بہت ہی عزیز دوست، مجھے نہیں معلوم تھا 1 گھنٹے بعد میری ان کی ملاقات ہوگی. 1 گھنٹہ پہلے ہم نے ان سے بات چیت کی. شکیل رشید صاحب ممبئی اردو نیوز کے ایڈیٹر ہیں اور بمبئی کے بہت سینئر ایڈیٹر ہیں. ان کا اتواریہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ملکوں میں پڑھا جاتا ہے جہاں پر اردو پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کسی کا میں نام نہیں لوں گا، میں صرف ہمارے جو دولہا ہیں آج کے ان کو میں مبارکباد دوں گا اور تمام لوگوں کا میں یہاں پر استقبال کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مصدر بھائی نے یہ کہا کہ میں اس طرح کا ایک پروگرام کرنا چاہ رہا ہوں. ورنہ خواتین و حضرات، ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارا بچہ انگلینڈ، آئرلینڈ، آسٹریلیا، یو ایس چلے جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ لوٹ کے واپس آتا ہے 2 سال 3 سال کے بعد، وہ ہمارے سماج کا نہیں رہتا. ہمارے سماج کا نہیں رہتا. بالکل معاف کرنا اگر میری بات کسی کو بری لگی تو. پھر آتا ہے چھٹیاں گزارے گا. کبھی کبھی بہت سارے کیسز میں دیکھا کینیڈا بھی جاتے، شادیاں بھی وہاں ہوتی ہے. یہاں آنے کے بعد شادیاں اگر سمجھو ہوئی، شادی میں شرکت ہوئی وغیرہ تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بچے ہم کو نہیں ملتے. اور سچ کہہ رہا ہوں میں، یہ جو ٹرینڈ مصدر بھائی آپ نے جو قائم کیا ہے، اس کو چلتے رہنا چاہیے. جب بچہ یہاں سے جاتا ہے فورن میں ایجوکیشن کے لیے غیر ممالک میں، تو اس کا باپ یہاں پر بہت پریشان ہوتا ہے. کس میں پریشان ہوتا ہے؟ پیسے اکٹھا کرنے میں. اس سے 25، اس سے 50، اس سے 10. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 18.5 لاکھ ہو جاتے ہیں اور آخر کے 50 کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے. پھر ہم جیسے غریبوں کے بھی کچھ لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے، بھائی 18.5 ہوا ہے، 50 کہیں سے دلاؤ یا آپ دے دو. ایک وہ اجرائے مذاکر حقیقت بھی ہوتی اس طرح کی صحیح باتیں ہیں. تو کیسا ہے کہ وہ اس کی پریشانی الگ رہتی ہے. ابھی یہ بچہ جو ہے آئرلینڈ سے آیا ہے. آئرلینڈ جو ہے وہ UK یونائٹڈ کنگڈم کی ایک ریاست ہے. تو ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگلینڈ سے آیا ہے. خود مختار ریاست ہے وہ، لیکن انگلینڈ کا حصہ ہے. وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے، اب پھر کل دوبارہ لوٹا ہے. ایک بات بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مصدر بھائی نے زندگی میں بہت سٹرگل کیا ہے. آپ تمام لوگوں نے دیکھا ہے، چپلون سے بمبئی، اور لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ انہوں نے سماج کے لیے اپنا بہت زبردست کنٹریبیوشن دیا ہے. تو مصدر بھائی کی جو خدمات ہیں سماج کے لیے، اس کی بھی آج سراہنا کرنے کا دن ہے. میں آج تمام لوگوں سے التماس کروں گا، ملتمس ہوں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے، مصدر بھائی کے لیے دعا کیجیے. مصدر بھائی نے ان تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دی. میری بات کا برا مت ماننا بیٹا، تیرے والد صاحب نے بہت بڑا کام کیا تعلیم کے تعلق سے، اور تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے جہاں پر ہمارے بہت کم ہی بچے، ہمارے بہت کم طلبہ جاتے ہیں. تڑپ ہوتی ہے، انٹیلیجنٹ ذہن ہوتا ہے،
जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माली हालात के सबब नहीं जाते। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ दोनों को और इनकी अहलिया को भी। यकीनन उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बच्चों की तालीम और तरबियत में। माँ का बड़ा किरदार होता है, माँ का बहुत रोल होता है। मैं कई मरतबा ये पूछता हूँ कि आपके पड़ोस का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, आपके पड़ोस का बच्चा डॉक्टर बन रहा है और आपके घर का बच्चा मोहल्ले के बच्चों के साथ नशा कैसे करने लगा? ये सवाल मैं किसी और लोगों से नहीं करता हूँ, मैं बच्चों की माँ से करता हूँ। और इन दिनों मैं सभी को एक ही बात बोल रहा हूँ, यहाँ जो मेरी बहनें बैठी हुई ना, उनको भी और तमाम मेरे भाई तमाम उसे यहाँ से, आप है ना मोहल्ले की फिक्र छोड़ो। आप मोहल्ले में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, फेस 1 में क्या हो रहा है, फेस 2 में क्या हो रहा है, तमाम चीज़ें छोड़ दो। वो कहता हूँ कि जो भी आपके बच्चे हैं, 1 है 2 है 3 है, आप मुकम्मल तवज्जो दीजिए अपने बच्चों पर, अपने बच्चों की तालीम पर, अपने बच्चों की तरबियत पर। माओ को मालूम होना चाहिए कि उनके पास उनकी लड़की की जो सहेलियाँ हैं उनके टेलीफोन नंबर होना चाहिए कि आपकी बच्चियों की, ये मेरा प्रैक्टिकल आजमाया हुआ नुस्खा मैं बता रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बच्चियों की सहेलियाँ कौन कौन है, उनके तमाम लोगों का टेलीफोन नंबर होना चाहिए। उनको आप गाए बगाए कम से कम ईद के मौके पर उनको बुलाते रहिए, ताकि आपको पता तो चले कि अच्छी सहेलियाँ हैं, लिखी पढ़ी फैमिली से आती हैं। और ठीक उसी तरह हमारे जो भाई हैं उनको भी ये चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दें। हमारे लोगों के पास बहुत वक्त है, मोहल्ले के लिए वक्त है, गांव के लिए वक्त है, दूसरों की बुराइयां करने के लिए वक्त है, सरकार को गाली देने के लिए वक्त है, लेकिन अगर वक्त नहीं है तो हमारे पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं है। अगर मैं किसी शायर से मुख्तसर कहने के लिए कहूँ तो शायर साहबान को मुख्तसर का मतलब बहुत अच्छे से मालूम होता है। हमारे दरमियान बहुत ही अजीम शख्सियत दावर अंदलीब साहब हैं, और मैं चाहूँगा कि शेर के साथ में, ठीक है शेर है कि नहीं खेल ना से जुनू की हकीकत, समझ लीजिएगा तो समझाइएगा। जुनू की हकीकत समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे सबको होते हैं, लेकिन बच्चे सबके होते हैं। बहुत अच्छा। बच्चे सबको होते हैं, लेकिन बच्चे सबके होते हैं। और हमारे दानियाल जैसे बच्चे हो तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। दानियाल साहब शायर का हवाला यहाँ दिया गया है। मैं एक शेर आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त लेता हूँ महफिल से कि कभी स्कूल बदलता है, तो जो चाहूँगा, कभी स्कूल बदलता है, कभी टीचर बदलता है, कभी पोर्शन, कभी लेसन, कभी पिक्चर बदलता है। बदलने को बहुत बातें बदल जाती है दुनिया में, मगर अच्छा स्टूडेंट हो जाए तो फिर फ्यूचर बदलता है। क्या बात है। शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो वक्त की नज़ाकत का क्या ख्याल बात है रखा। भाई, बहुत जबरदस्त महफिल लूट ली, और मुख्तसर पुरअसर और बहुत लाजवाब लाजवाब लाजवाब, बहुत भारी। तो अब मैं जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, ये उस शख्स को आवाज देने के पहले शेर कह रहा हूं मैं कि इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले, मेरी मुराद कमाल मांडलेकर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। काम करो ऐसा, खासकर दानियाल के लिए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो कि निशान बन जाए, निशान बन जाए, निशान बन जाए। थैंक यू। बहुत अच्छा। मैं एक और शायर साहब को बुलाता हूँ, इकबाल मुकादम साहब, सहाफ़ी, मुसन्निफ, कई किताबों के जो है मुसन्निफ हैं, और एक शेर के साथ में कि चाहत के बदले में हम तो बेच दे अपनी मर्जी तक, कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो। बहुत अच्छा शेर, बहुत गहरा शेर। अस्सलाम वालेकुम। मी मराठी माध्यमातून बोलणार आहे आणि कोकणी माणसं असल्यामुळे मला जास्त बरं वाटते की सगळेच ह्या माझ्या 2 शब्दांना ओळखून घेतील, विशेष करून इथे बसलेली ही व्यक्ती। बदिऊ जमा खावर यांना सगळेच ओळखत असतील, जर तुम्ही ओळखत नसाल तर पुन्हा त्यांना वाचण्याचा प्रयत्न करा, गुगलवरती आहेत। तर बदिऊ जमा खावरने एक शेर लिहिलेला आहे
घेऊन नाव फुटकी, सर घेऊन नाव फुटकी, दर्या फिरून आलो, अरे मी वादळामध्येही नाही कधी बुडालो. हा माणूस केव्हाच बुडणारा नाहीये, कारण त्याच्या हातात बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे सांगितलं होतं की तू पहिल्यांदा शिक आणि नंतर संघर्ष कर, तो शिकलाय आणि आता संघर्ष करतोय. तर त्याच आपल्या बतू जमा खावानी बोललेला आहे, शोधावयास दाणे, सर शोधावयास दाणे जी एकदा निघाली, परतून पाखरे ती घरट्याकडे न आली. लाटाही शांत होत्या, वाराही मंद होता, ऐशात देव जाणे का गलबते बुडाली. हा, त्यांनी जे पुढे से सांगितलेलं आहे ना, ते फार महत्वाचं सांगितलेलं आहे की विहिरी खणून आता उपयोग काय खावर. सर विहिरी खणून आता उपयोग काय खावर, अरे केव्हाच आपली वस्ती वणव्यात भस्म झाली. तर कोकण आपल्याला भस्म करायचं नाही आहे, पण शिकायचं आहे, शिक्षण घ्यायचं आहे. आणि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुस्कुराना भी एक सदका है, मुस्कुरा कर देखना वाला. और एक बहुत ही मुस्कुराने वाले आदमी को मैं इस शेर से बुला रहा हूँ कि जब भी न तशरीफ फरमाइएगा तो फिर हाथ मलते ही रह जाइएगा, हम ही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा. तो मेरी मुजाहिद मेहर साहब से गुजारिश है कि आप बातों की शुरुआत करें. सारी अदबी शख्सियात और उर्दू दिल पर्सनालिटीज को मैं पहली मरतबा एकजा देख रहा हूँ, जिससे दिल मेरा बहुत ही सरशार हो रहा है. यकीन जानिए बहुत खुशी हो रही है. मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ मद्दर मुल्ला जी साहब को, जिनके बारे में जो एंकर ने जो कहा मैं समझता हूँ उससे और बेहतर इंसान है. मैंने इतना मुखलिस इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, और बिना किसी मुआवजे और बिना किसी बात के लिए इखलास के साथ काम करने वाली शख्सियत तो मदर मुल्ला जी है. अगर हम इखलास के साथ काम करेंगे तो अल्लाह हमारी नस्लों को कैसे दाया करेगा. तो ये उनके बरखुरदार जो है वो उनकी दुआओं का समरा है. मेहनत तो उन्होंने ज़रूर की है, बट अल्लाह पाक खुद कुरान में कहते हैं कि तुम मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा. और एक बाप की दुआ बेटे के लिए, इससे बढ़कर और बात क्या हो सकती है. तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसके भी ताबनाक मुस्तकबिल के लिए दुआ करता हूँ. सारे लोगों को देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है. मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे मैं हमेशा और भी आइंदा मिलता जुलता रहूँ. और आखिर में हमारे शोएब ने, मेरा भांजा है, हम मिलकर ये एक अच्छी स्कूल चला रहे हैं, अच्छी स्कूल शुरू करने जा रहे हैं. मैं आपसे दुआएं चाहता हूँ, क्योंकि दुआएं बहुत पुरअसर होती हैं. दुआएं हर चीज़ को बदल देती है. दुआ करें कि ये हमने जो ये शजर हमने एक बोया है, शजर लगाया है, अल्लाह अबियारी ज़रूर करेंगे हम उसके. अब दुआ करें ये मज़ीद फले मज़ीद फूले और पूरी उम्मत को उसका फैज़ मिलता रहे. इन्हीं चंद कलमा के साथ मैं ये कहूँगा कि ऐसे मिला करो कि करे लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह खैरा. बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब. अब जो है हमारे दरमियान उर्दू अकेडमी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत वक़ार कादरी साहब की है. फिर सुन लीजिए, अच्छा रहेगा. आप तैयार हैं कि माना कि इस जहाँ को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से. अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, अलवारे साहब और आप तमाम बुजुर्ग हजरात. सबसे पहले तो मुझे जो बोलना था वो सब सलीम भाई बोल चुके. सच बोल रहा हूँ, मतलब मैं जो तैयारी करके आया था ना, क्योंकि मैं मजदर को उस जमाने से जानता हूँ जो इतना सा था. मजदर की एक बहन हमारे गांव में भी आई हुई थी, तो मजदर बचपन में हमारे गांव में आते थे, तो जाहिर है कि बच्चे जब छुट्टी में आते थे तो एक एंजॉयमेंट रहता था. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. इसके लिए एक बहुत अच्छा शेर, तुम तमद्दुन से रहो और सदा शाद रहो, तुम तमद्दुन से रहो और सदा शाद रहो, है ये हरदम दुआ मेरी कि तुम आबाद रहो. बस. और मजदर भाई की बारे में सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि मैं कई ऐसे कमर्शियल प्रोग्रामों में जाता था, वहाँ मजदर भाई दिखाई देते थे, तो मैं मजदर भाई को बोलता था तुमला हदे के फायदो आहे काय, तखन आम्ही ऐसो बेलोस खादी कामाशी होय. इतकी त्यांनी खिदमत केल्याने ना कौमची, वाकई मैं उनको सैल्यूट करता हूँ. जहाँ हमको 5-50 मिलते थे ना, वहाँ ये पहुंच जाते. मजदर भाई तुमचं होतं काय फायदो आहे काय हो, तखन नाही मग उगीच कशाला आई. लेकिन मैं मानता हूँ मजदर भाई को, मैं सैल्यूट करता हूँ उस आदमी को, और इसके साथ इजाजत लेता हूँ. शुक्रिया साहब. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत मुख्तसर, बहुत पुरअसर. बातिन में से भी अगर कोई कहना चाहें तो स्टेज आपके लिए खुला है. मुख्तसर शर्त है
मकसद है अगर तरबियत लाल बदख्शां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतो, दुनिया है रवायात के फंदे में गिरफ्तार, क्या मदरसा वालों की तगदो, कर सकते थे जो अपने जमाने की इमामत, वो कोहना दिमाग अपने जमाने के हैं पैरों। तो ये इनसे अलग जो अपने जमाने के पैरों नहीं है। मैं प्रोफेसर साहब से कहूँगा, डॉक्टर प्रोफेसर अकबर दलवी साहब से, कि अपनी बात कही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब प्रोफेसर का काम होता है लेक्चर देना और बातें करना, लेकिन मैं उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है मुख्तसर बात करने की कोशिश करूँगा। और जो कि बहुत सारे शोरा हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, यानी ये महफिल जो है मैं देख रहा हूँ, मैंने सोचा था कुछ, और यहाँ आने के बाद जो मंज़र है वो बहुत ही खुशनुमा तो है ही है, क्योंकि दुल्हे मियाँ दानियाल हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और शकील भाई हैं, अलवारे साहब हैं, अपने वकार कादरी साहब है, मुकादम साहब है, और मेरे भाई ये भी है, और बहुत सारे हैं, मैं नाम किस किस का लूँ। जिस महफिल की शुरुआत कलाम पाक से हुई, तिलावत कुरान से हुई, वही आयत जो है वो हमारे वही से हैं, कुरान शरीफ से हैं। और जहाँ तक इल्म का सवाल आता है, मुझे थोड़ा सा मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग उम्रा के लिए या हज के लिए जाते हैं, और देखते हैं कि एक जगह ऐसी भी है कि जंगे खंदक बोली जाती है, और सलमान फारसी रदी अल्लाह का नाम वहाँ आ जाता है। और आप लोग सब जानते हैं कि सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु जो है वो स्कॉलरली पर्सन थे, जिनको अलग अलग वही का नॉलेज था, चाहे तौरात हो, इंजील हो, और बाकी जो है तो, और उनकी दोस्ती जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, यानी वो करीब हो गए उनके साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके करीब थे। तो ये बात तो जाहिर है, और मेंशन है, इट इज़ मेंशन इन दी। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई, इकरा आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको हालत मालूम है, और शुरुआत, और उसके बाद 23 साल का अरसा, और जब भी, क्योंकि वो नबूवत थी, नबी थे, तो वो प्रिपेयर्ड है या नहीं है, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको तैयार किया और बाकायदा वही उनके ऊपर आ गया। तो इल्म की बात है। अब इल्म की बात है तो ये भी है कि भाई मक्का मदीना में तो हमको फ़र्ज़ है, तो हमको जाना है, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर फराइज़। बट लेकिन चाइना का भी मेंशन है, चीन का भी है, तो इल्म का सवाल है। व्हेन यू हैव टू कमांड द वर्ल्ड योर टेम्पररी फेज, यू हैव टू बी विथ एजुकेशन। आप इल्म हासिल करो, और आखिरत जब आपकी टेम्पररी फेज अच्छी रहेंगी तो परमानेंट फेज माशाल्लाह आपकी अच्छी रहेगी। और इसके लिए हमको इल्म लेना बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। और यहाँ जो भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना, उसके तो कोई मिसाल नहीं है। दे आर डूइंग अ लॉट, और उसका अजर जो है अल्लाह ताला उनको देगा, इसमें कोई शक नहीं। मुझे यही कहना है कि बस कहीं दानियाल को मेरी एक बात है, यहाँ मैंने अब देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ बात कर रहे हैं ओरेटर्स सब बात कर रहे हैं। मजदर मेरा भांजा है, मैं मामू लगता हूँ उसका, मेरे घर की बात। हबीबुल्लाह भाई भी मेरे रिश्तेदार है, तो हम है, तो मैं ये बच्चा जो है इसकी शुरुआत है एक टेम्पररी फेज की, पहली फेज मैं इसको कहूँगा, सेकंड फेज और थर्ड फेज आएंगे। जैसा हम लोग थर्ड फेज में है, बहुत सारे लोग थर्ड फेज में। तो दानियाल को आज मजदर का जिक्र यहाँ ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा सा अलग हूँ इस चीज़ से कि इस महफिल में अगर अगली महफिल कभी कहीं होती है तो मुझे दानियाल का जिक्र ज़्यादा होना है, क्योंकि दानियाल का अब्बा मजदर है, मजदर का बेटा दानियाल नहीं है। मैं ये ज़्यादा इसमें ज़्यादा खुश रहूँगा, आज भी खुश हूँ, लेकिन ये होना ज़रूरी है, क्योंकि दानियाल की आइडेंटिटी होना चाहिए, दानियाल को रुकना नहीं है। और माशाल्लाह अलवारे साहब ने वो परिंदे के साथ, या किसने, आरिफ भाई ने क्या शुरुआत की, परिंदे का शेर या कुछ, हाँ भैया है। तो परिंदे की बात है तो उड़ान है भाई, उड़ान तो होती ही है, ऊपर तक जाती है। तो दानियाल यहाँ रुकना नहीं है, आपको बहुत आगे बढ़ना है। एंड फ्रॉम द हार्ट, बॉटम ऑफ माई हार्ट, ऑल द विशेस टू यू। मैंने कुछ चुन के फूल लाए, चुन के बोले तो कोशिश की खुशबू वाले फूल मिले, लेकिन मिलते नहीं है, खुशबू अब कम हो गई है, फूलों में खुशबू जो है कम हो गई है। और यहाँ ये देखने के बाद थोड़ा सा मेरा माइंड अभी
यानी मेरी हिम्मत अफजाई हो गई कि शायद वो खुशबू वाले फूल भी मिल जाए और वो रिलेशंस में जो मज़ा होता है, जो अपनापन होता है, वो भी हमें मिले। तो ये कहकर मैं अपनी बात को यहाँ कलकुट का, और एक शेर, जब इतने शोरा जो है शेर बोल रहे हैं तो मैं भी एक शेर बोलूँ तुम्हारे लिए। दूल्हे मियाँ आते है ना, आज के महफिल के दूल्हे मियाँ। तो माँ बाप तो हकदार है ही है, जैसा मजदर है उसकी हाफ जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर बोलते हैं, वो भी हकदार है, वहाँ बैठी हुए हों तो उनका भी हक है, क्योंकि बच्चे की परवरिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो रिफ्लेक्ट होती है। तो माशाल्लाह वो रिफ्लेक्ट हो रही। मेरा शेर है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर कुछ सुनहरी यादें होती हैं, कुछ सुनहरी यादें होती है। हमारे दोस्त कुछ ऐसे होते हैं, वो नज़रों से दूर सही, लेकिन उनका एहसास जो है दिल के पास होता है। तो दानियाल, तुम चाहे आइलम में रहो चाहे कहीं भी रहो, तुम्हारा एहसास हमारे पास है और मैंने तुमको दोस्त मान लिया। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे मौका दिया। अमीन भाई। तो अब मैं सुमैया मुजाहिद साहिबा को आवाज दे रहा हूँ। उनके आने तक एक शेर तो निकल ही जाएगा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े तरों। जल्दी आइए भाई, नहीं तो और एक नहीं, सुमैया के लिए मैं आपको तमाम हजरात को बताना चाहता हूँ, ये बच्चे ने वकालत पास की है और LLM अभी कर रही है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे कोकन टैलेंट फोरम के हम जो डिबेट होते हैं उसकी टॉपर रही है, 3 साल टॉपर रही हो, तो बहुत प्यारी बच्ची और अच्छी बात करती। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई थी मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। हाजरीन, सबसे पहले तो मैं मजदर सर को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि हमारे जो दानियाल भाई है, इन्होंने, क्योंकि देखो आज के ज़माने में एजुकेशन, तालीम हासिल करना आसान है, लेकिन आला तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज का जो दौर है, जो टेक्नोलॉजी वाला दौर है, यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने है, बहुत सारे हमारे अंदर चैलेंजेस है और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आला तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो मैं दानियाल भाई को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि इन सारे जो ऑब्स्टेकल्स है उनको टैकल करके उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि संगरेजों की चुभन का मुझे एहसास नहीं, मैं तो मंजिल की मीनारों पे नजर रखता हूँ। तो मैं बहुत उनको मुबारकबाद फिर से एक बार पेश करती हूँ। और देखने गए तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, हम इंस्पिरेशन लेकर, क्योंकि अब ये जो प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं जिससे हौसला अफजाई होती है, एप्रिसिएशन होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम लोगों के लिए एक ऐसी मिसाली शख्सियत हमारे सामने खड़ी हो जाती है जिसे देखकर हम इंस्पायर होते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आज ये जो फंक्शन महफिल को अटेंड कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को देख सरमाया लगता है और बहुत सी चीज़ें लगती है जो हमने देखी है, हमने पर्सनल उनको मेहनत करते हुए देखा है। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनकी मेहनतों को उनकी मेहनतों को कामयाब करे। और दानियाल भाई, आपके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको भी और तरक्की मिले और आप इसी तरह हमें भी इंस्पायर करते रहे। तो मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ सबका कि इतनी महफिल, वक्त की कमी होने के बावजूद भी मुझ नाचीज़ को कुछ कहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिनको हम कोकन का अगर सर सैयद कहें तो नहीं जाना होगा, कई स्कूल के बनाने वाले और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत अब्दुल रऊफ फजिंदार साहब। तो मेरी गुजारिश है कि आप बात महफिल जो लोग शामिल हो गए, सबों की तरफ से मैं अजय साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। उनके खुदार के लिए मैं ख्वाहिशात पेश करता हूँ, अल्लाह उसे और कामयाबी अता करे। और मैं एक चीज़ उससे कहूँगा, कभी गर्ल्स की बात अलग है, अगर जब UK USA में जब जाते हैं तो उनसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस अपनी मातृभूमि को कभी हर वक्त वो अपने वहाँ पर जो दिन गुजारेंगे तो यहाँ की हर बात से वो
मालूमात लेते रहें, अपने वालिदैन से जुड़े रहें और अपनी मंजिल को और आगे बढ़ाते रहें। दूसरी बात, अभी शेर भाई ने जो स्कूल का मुझे बताया, स्कूल शुरू करना बहुत ईजी है और स्कूल को चलाना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। बहुत सारे मसाइल आते हैं, पेरेंट्स के आते हैं, गवर्नमेंट के आते हैं, कुछ पॉलिटिकली कुछ हालात आजू बाजू के। आप जब इस कुर्सी पर बैठेंगे तो 2 घड़े पानी डालकर बैठिएगा, कभी किसी से उलझना नहीं, क्योंकि इस अदारे को अपने आगे बढ़ाना है। तो इस चीज़ के लिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और आगे बढ़। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो क्वालिफाइड टीचर्स आपने रखे, अभी मैंने आपसे मालूमात दी, उनको आज जो है उनको और इम्प्रूव कर अच्छी तरह से तालीम की क्वालिटी को आप ज़्यादा अच्छा दे देंगे, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। क्योंकि इस एरिया में मैंने देखा हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी चीज़, आपको मैंने अभी ही कहा हो, आपका एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये यू आर लैकिंग बाय दैट एडवर्टीजमेंट, नोबडी नोज अबाउट दिस। मार्केटिंग होना चाहिए, मार्केटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप होर्डिंग्स लगा दीजिए कॉर्नर पर, सब तरफ जगह पर आपका बोर्ड भी बड़ा होना चाहिए। उसकी वजह से आप उसमें, और ये स्कूल की तरक्की कब होगी? जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। यकीन करो, जब मैंने इंग्लिश मीडियम शुरू किया था 2013 में, तब सिर्फ 13 बच्चे थे। आज अल्लाह के करम से 850 बच्चे। तो ये आप हिम्मत नहीं हारना है, आप जितना भी हो जाए उसको पूरा करना है। आज नहीं तो कल आप उस मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। हमारी सबों की तरफ से दुआएं हैं आपको, और आप इस मंजिल को ज़रूर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप और तरक्की करते जाए और यहाँ पर एक नमूने की स्कूल बन जाए, एक ब्रांड बन जाए। ये आप उसके लिए कोशिश करते रहेंगे, ये मेरी उम्मीद है। और नेक ख्वाहिशात के साथ मैं अपनी बातें करता हूँ। मैं मुख्तसर ही कहना पसंद करूँगा। हमारे साथ में जो हैं कालसेकर कॉलेज के सिविल डिपार्टमेंट के HOD साहब फवाद सरकार साहब हैं। ये आपके उस्ताद मोहतरम दानियाल के, चाहूँगा कि अपनी बात करें। सबसे पहले मुझे progressing to another country for securing his name for dreaming big. So we wish him all the best, कि वो अच्छे से अच्छा करे, अच्छे से अच्छा ताकि हासिल करे। जैसे सबों ने कहा कि you be connected to the mother language of homeland। आप इधर connected रहो, अच्छा करो। We wish all the best for you. Secondly, I would wish success international school, very big congratulations कि आपने इस माहौल में you started a new school. Of course, the competition is great, but unless we give something different, है ना, वो क्या होगा? That point, selling point should be that USP should be with us. तो आप अच्छा करो इंशाल्लाह, and definitely will bring good laurels to you. We will get a very good batch of students इंशाल्लाह। Thank you. बहुत अच्छी माशाल्लाह। इंश्योरेंस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, अपने दिल की बात उसी तरह से करें जिसका नाक अपनी मनी निकाल के सबके सामने रखें। And esteemed guests and dear friends, we are gathered here today to celebrate a remarkable achievement of Danial, completion of his master degree from prestigious foreign university. This milestone is evidence to Danial's hard work, dedication and determination. I would like to take a moment to acknowledge the unwavering support and sacrifice made by Danial's family, particularly his father, Mr. Madar Mullaji, and Danial's mother. Your commitment to children education is truly inspiring. Your humility, kindness and devotion have been guidance force in shaping Danial's value and work ethics. Danial's achievement is not just a personal victory, but also a reflection of your family's value and priorities. Your younger son
completed engineering degree and your daughter pursued for graduation are example to the strong foundation you have built. I would like to express my gratitude to Mr. Mazhar Mullaji for being an exemplary colleague and shining example of dedication and integrity. As we celebrate Daniel's achievement, let also look forward to his future endeavors. May Almighty God bless him with continued success, wisdom and opportunities. May he use his knowledge and skill to make positive impact in the world. I wish Daniel all the best for his future and congratulate him to his remarkable achievement. May God bless Daniel with good health, happiness and prosperity. Inshallah. Thank you. So we are having this nice informal meeting celebration of Daniel Qazi's success here in the Success School. And Mr. Shoaib Surve, the killing smiling personality, his smile is very, very nice and a very dashing personality. And I have seen that he's a very visionary man. And we need a lot of young people like him, that they should establish schools, big premises and do a lot for the Muslim community. So I call him here to speak his heart to the people what he's feeling here. First of all, thank you all of you to join us, and I'm very honored today to see all of you where we have so much of big personalities over here, and I'm I give a very congratulations to Daniel and Mazhar Mullaji sir, and as sir said that I have a good vision, so my vision is to incorporate vision to my students. That is very important. We must incorporate our vision to them so that they can, multiply it. It multiplies to the entire society. Okay? And Daniel is also doing the same thing for our society. He has contributed something to the society. If we don't contribute to the society, how can we create our value? Creating value is very important. Today we say that we don't have value as a minority, we don't have value in the society. But the value comes from the contribution to the society. So I wish very congratulations and all the best to Daniel and Mazhar Mullaji sir, and thank you so much. Thank you. हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है आपके लिए और साथ में इकबाल भाई और आप लोग भी आ जाओ। नहीं यार तुम एक बार भैया तुम चाहता नहीं आ जाओ आप लोग का हाथ लगे जिस की तरफ इनको शाल भी पहना रहे थोड़ा शकील भाई थोड़ा इकबाल भाई थोड़ा मुझे फोटो काट लो आएगा थैंक यू वेट ले ले बराबर वेट हेलो वेट एक मिनट वेट अरे पुराना से ना हाँ बहुत थैंक यू डियर थैंक यू चले आप अभी इंडिविजुअल अच्छा मजा करके बोल रहा है बाहर निकालिए अकड़ गया है अकड़ गया फोटो लेना फोटो आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह इनको फेसिलिट करने दो हाँ जाओ 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 आप लोग जाओ दूल्हे में आपको बहुत अच्छे आदिल भाई और आरिफ भाई छोगले और बाबा छोगले साहब सलमान भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे माशाल्लाह। जितने भी ध्यान से सुनी है, अब सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनने वाली तकरीर खुतबे सदारत की है और मैं शकील रशीद साहब को इस शेर से आवाज़ दे रहा हूँ। खुशी करेगा तुझसे किस तरह मैं इजहार तमन्ना करता, तुझसे किस तरह मैं इजहार तमन्ना करता, लफ्ज़ सूझा तो मानी ने बगावत। बहुत बढ़िया। दानियाल की बहुत बहुत मुबारक, मिस्टर भाई को मुबारक।
दानियाल की कामयाबी का क्या मतलब है? सवाल तुम्हारे सामने। कौन है? आरिफ मोहम्मद। मैं समझता हूँ कि दानियाल ने कामयाब होकर मस्तर भाई को भी कामयाब कर दिया है और उस कौम को भी कामयाब कर दिया जिसमें और एक ट्रेंड उन्होंने बनाया है कि एक दरमियाने मुतवसत तबके का एक फ़र्द है, उसके घर में पैदा होने वाला बच्चा भी आला तालीम हासिल कर सकता है अगर उसमें अज़्म और हिम्मत। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि मसदर भाई से मेरे ताल्लुकात उस वक्त के हैं जब मैंने जर्नलिज्म की शुरुआत की थी। आज के ताल्लुकात नहीं हैं। डोंगरी में हम लोग कभी कभी मिलते थे, हम दोस्तों का एक ग्रुप होता था, बैठता था। उस वक्त से मैं जानता हूँ मसदर भाई को उन्होंने किस तरह से जद्दोजहद की है, किस तरह से ख़ुद को आगे बढ़ाने के लिए और ख़ुद के साथ उनके साथ जो दोस्त रहते थे, जो लोग रहते थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए कितनी मशक्क़त की है। मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ पहले यहीं पर तलोजा में उन्होंने जब शुएब सुरैय साहब से मेरी मुलाकात करवाई तो एक बहुत गरीब ख़ानदान का जिक्र किया था। सिर्फ उसका मर्द मर गया था, वो औरत का, उसकी बच्चियाँ थी, तालीमी मामले की, और मुझसे कहा था कि उसको अखबार में डालिए तो शायद, और अखबार में डालने से है मदद होती है, लोगों की मदद के लिए लोग उठते हैं जिनके दिल में जज्बा होता है, दर्द होता है। तो ये मसदर भाई हैं कि वो दूसरों का ख्याल रखते हैं, तो जो दूसरों का ख्याल रखता है अल्लाह उसका ख्याल रखता है और यकीनन अल्लाह ने उनका ख्याल रखा है और इस बच्चे को उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि एक हीरा बनाया है, एक अनमोल हीरा बनाया है। और मेरी ये दुआ है कि ये बच्चा और कामयाबी हासिल करे। अल्लामा इकबाल का शेर है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, रिश्ते जहाँ और भी हैं। यकीनन आपके सामने मुश्किलें आएंगी, हालात आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन ये कि आपने जो यहाँ से तालीम शुरू की अपनी इस मिट्टी से, इस ज़मीन से, और वो बहुत आसान नहीं थी, लेकिन उसमें आपके सामने बहुत मुश्किलात आई होंगी और उन मुश्किलात से कैसे टेकल किया जाए आपने उसको सीखा होगा, तो आपके लिए आगे के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। तो आप जब आगे बढ़ें, आगे जाएं, तो मसदर भाई को ना भूलें, अपनी वालदा को ना भूलें, जो कि आपके लिए पहला मदरसा थी। वालदा किसी भी माँ की जो गोद होती है वो बच्चे का पहला मदरसा होती है और उस मदरसे से ही अगर अच्छी तरबियत मिले तो इंसान आगे बढ़ता है। मसदर भाई, उनकी अहलिया दोनों मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, आप खुद मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अल्लाह आप लोगों को खूब कामयाब करे और मैं ये समझता हूँ कि आपसे इंस्पायर होकर इस कौम के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें। इस कौम में तालीम की बहुत कमी है, एक बात मैं बता दूँ, लोग पढ़ते नहीं हैं, तालीम की तरफ जाते नहीं हैं। लोग कोशिश करते हैं कि लोग आएँ, उसके बावजूद लोग नहीं पढ़ते। तो ये एक जंग जैसी सूरत हाल है, हम एक जंग से गुजर रहे हैं। ये तालीमी जो जंग है, इस जंग में हमको कामयाब होना है, उसके लिए हमको अपनी तमाम गनें जो हैं खोल देनी है। हर मुश्किल है उस पर काबू पाना है और अपने बच्चों को किसी न किसी सूरत में आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको तालीम नहीं देंगे, तो वो आप देखिए आजकल के क्या हालात हैं, क्या बन सकते हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं। इस मुश्किल हालात में ये लोग जो हैं हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन के आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, एक बच्ची आई थी अभी सुमैया LLM कर रही है, वो खुद इंस्पिरेशन के मतलब उससे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कोई बच्ची LLM करे और जज्बे के साथ LLM करे, माशाल्लाह, उसको भी मुबारकबाद है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए आखिर में शुएब भाई का इस स्कूल को मैंने देखा है जबकि बन रहा था, तब मैं यहाँ आया था, इनकी क्लास में मैं गया हूँ और इनका जज्बा भी मैंने देखा है। ये बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अल्लाह इनको भी कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। शकील जी साहब बहुत पढ़े लिखे और रोज़ाना उनके जो अदारिये और न जाने क्या क्या बातें, बहुत अच्छी बातें की, बहुत शुक्रिया मोहतरम आपका। अब मैं मजदर मुल्ला जी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। इस शेर के साथ में बड़ा मशहूर सा शेर है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद कि सभी को फैज़ पहुँचे, मैं चिराग रहगुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जला दो। जलते रहे हैं मजदर मुल्ला जी साहब और
इनके बच्चे को तो अच्छा होना ही था, क्योंकि न जाने कितने सारे बच्चे जो है वो मजहर मुल्ला जी की कोशिशों से अच्छे हुए हैं। हर एक को मदद पहुंचाने के लिए, एक बात कहें तो उस बात के लिए भागम दौड़ करने के लिए, और एक अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी है। मैंने कोकन में जहाँ भी जिस गली में भी इनको देखा जाते हुए, तो हर किसी को इन्होंने उसके नाम से पुकारा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियत दी है। मैं आखिरी बात करने के लिए, रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए, अपने दिल की बात करने के लिए और गुल पेशी के लिए वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो सभी हजरात को मालूम है कि मैं तकरीर नहीं करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोकण टैलेंट फोरम का मेरा बहुत बड़ा ग्रुप, जिसके साथ मैं 25 सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर है। उसके साथ बहुत सारी तालीमी, समाजी, फलाही शख्सियत यहाँ मौजूद है, और मेरी दावत पे सभी लब्बैक कहते हुए यहाँ पहुँचे हैं। शाहिद लतीफ़ साहब जो रोज़नामा इनकलाब के मुदीर हैं, उनका भी शाम को फ़ोन आया था। मंजर में नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन किसी रोज़ मैं घर पर आऊँगा, क्योंकि वो मेरे बच्चों को बचपन से जानते हैं। साजिद खान साहब का भी फ़ोन आया कि घर रिजल्ट लगने वाला है, मैं नहीं पहुँच सकता हूँ। लेकिन मैं तकरीर नहीं करता हूँ, लेकिन आज इस तकरीर करने की एक खास वजह है, क्योंकि मेरे घर में भी जब मैं घर पर आता था तो मेरे बीवी बच्चे मुझको पूछते थे, प्रोग्राम में गए थे, आपने कुछ बोले? बहुत अच्छे। और दूसरी बात, जब सबकी तस्वीरें व्हाट्सएप पर देखते थे और मेरे इसमें देखते थे, बोले सबकी तस्वीरें दिखते, आप प्रोग्राम में गए थे नहीं गए थे, आपकी फोटो किधर है? आज तो वीडियो आएगी बाकायदा। हमेशा बोलते थे मजदर को बुलाऊंगा तो 10 मिनट मजदर किधर है वो आने के लिए लगता है। मैं सबसे पहले मेरे बच्चों की जो कामयाबी है, बड़ा बच्चा मास्टर हुआ, दूसरा बच्चा अभी जॉब पे एक्सटेंशन में घर पर है, मेरी बेटी अभी लास्ट ईयर है, तो मेरा जो अचीवमेंट है उसके बाद, लेकिन सबसे पहले मेरी रहनुमाई जिन लोगों का हाथ है उसमें आज कुछ मौजूद है, कुछ मौजूद नहीं है। मैं सबसे पहले मेरे आइडियल फाउंडेशन के जिम्मेदार हसन शुक्ले साहब को याद करूँगा। दाऊद भाई है, प्रोफेसर उस्मान खान साहब है जो साबू सिद्दीक के प्रोफेसर थे। ये 3 महीने में हम लोगों को बहुत बड़ा एक धक्का लगा है। कोकण की तालीमी फील्ड हो, फलाही हो, सब हो। 14 दिसंबर को हसन भाई को मैं मिलने के लिए सैफी हॉस्पिटल में गया था, बीमारी हालत में। उन्होंने पूछे तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, उसका पूरा बायोडेटा मुझे भेजो। और हर बार सभी लोगों ने मेरी रहनुमाई की है। प्रोफेसर मालगुणकर साहब है, अभी सबका नाम मैं लेने लगूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। अभी वक्त भी मेट्रो का हो रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेट्रो छूट जाती है। आज मैं सबसे पहले कहूँगा कि कभी कभी हम लोग जब बच्चों की कामयाबी देखते हैं तो माँओं को भूल जाते हैं। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ बैठे हुए जिनके साथ मैंने 1997 से काम किया हूँ, वो भी मुझे जानते हो। अक्सर मुझे चिल्लाते थे, मजदर ये सब छोड़ दो, समाजी सेवा उसमें काम कर दो, तुम इंश्योरेंस फील्ड में बहुत पैसा कमाओगे। ये है डेवलपमेंट ऑफिसर काजी साहब। वो अक्सर मेरे को डांटते थे, ये सब छोड़ दो, लेकिन वो मेरा एक नशा था। और उस नशा जिन बच्चों के लिए मैंने काम किया हूँ, उन बच्चों की दुआओं से मैं ये हासिल किया। कुछ नहीं, जब रात को 12 बजे तक नहीं आता था तो मेरे बच्चे पूछते थे आपका रोज रात में क्या करते, तुम क्या कमा रहे हो? लेकिन उसका रिजल्ट में जब कोरोना के टाइम पे उनको बताया, जब LIC का कमीशन आता था, वो एक मैसेज आता था, मैं बोला देखो मैंने जो 12 बजे तक काम किया हूँ ये उसका पैसा, यानी मेरी आमदनी आ रही है जो मैंने 30 साल तक तुम्हारे लिए किया हूँ। ये आज मैं सभी जानते हैं। हसन चौधरी साहब अक्सर मुझे बोलते थे मजदर तुम स्टेज पर आकर बोलो, तुम पीछे रहते हो, तुम बोलना शुरू करो। आज वो मेरे में मौजूद नहीं है, लेकिन अक्सर उन्होंने पूछे। दाऊद भाई भी अक्सर, सभी लोगों ने मेरे बच्चों की तालीम के बारे में पूछे हैं। आप सबों की दुआ है। आज गैंसन कंपनी के मालिक हुसैन मुल्ला जी साहब हैं और जाकिर मालिक साहब, ये भी स्कूल चलाते हैं, सेंट्रल रेलवे के ऑफिसर हैं। ये मैं कुछ नहीं हूँ कि मेरे फ़ोन पे कोई भी आ जाए, लेकिन सब मेरी मोहब्बत में यहाँ पे आए हुए। और शुएब भाई की स्कूल जो ये हो रही है, मैं लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों को रिकमेंड जब करेंगे तो आपके वाले और रिश्तेदार भी यहाँ जुड़ेंगे कि कौन लोग काम कर रहे हैं।
तो आज सभी मेरी दावत पे यहाँ पे शामिल हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और दावत आप बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बोले, बहुत गुड। सर ने जो बात कही मतलब मुल्ला साहब ने, तो मार्क ट्वेन का एक कोटेशन मुझको याद है कि इट इज़ बेटर टू डिजर्व ऑनर्स एंड नॉट हैव देम देन नॉट डिजर्व एंड हैव देम। तो सर की फोटो सामने नहीं आना और बुनियाद का पत्थर बने रहना, ये ज़्यादा कामयाबी बजाय इसके के सामने आते हैं जो हम विषयी कोणी काहीच बोललेलं आमीन. तेव्हापासून ते किती ते अशार आपल्यावरती जे त्यांनी सांगितलं लाजवाब बँकेत. लाजवाब, त्यांच्यासाठी एक क्लॅप. एक फूल भी दे दो, एक फूल भी दे दो, एक फूल भी दे दो. माशाअल्लाह. हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात. तवज्जो चाहूँगा मैं, एक शुक्रिया रह गया हमारे कोकनी माउंटेनियर साहब का और अकबर दली साहब उनकी खिदमत में फूल पेश कर रहे हैं. ओके, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह. ये मेरी एजाज़ है कि डॉक्टर प्रोफेसर अकबर दरवी साहब फूल पेश करें मेरे. जज़ाकल्लाह, प्रोग्राम को ये रिकॉर्ड करते रहें और पूरे सब्र के साथ में हर एक की बात सुनी. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह. ये ताम का सब चल रहा है, बढ़िया है. अच्छा, चिकन पुलाव, जमजम पुलाव, साथ में कटलेट वाला भी है. माशाल्लाह, सब अल्लाह की नेमत से महसूस हो रहे हैं. इकबाल भाई, हम भी अरेंज कर चुके हैं.